Hey guys, what's up? This is Faraz from a couple unfiltered. So this is a solo video again, as you can see me alone here. So my wife is not being will not be a part of this video because she's not interested much in this thing. But I really want to talk about Dhurandhar. I'm a king, but I pop, I'm a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make the hits ring. लास्ट वीक उसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ था एंड really matlab after Animal I would say this is the best thing that has been dropped by any Hindi cinema or Indian movie trailer I've seen since Animal 2 years back. And what a coincidence, ये भी 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है और एनिमल भी 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी. एंड आई रिमेम्बर कि मैं और मेरी वाइफ हम लोग एक ट्रिप से रिटर्न कर रहे थे. हम लोग न्यूली मैरिड थे एट दैट टाइम. वी वर रिटर्निंग फ्रॉम अ ट्रिप and we went to our cousin's home, and there we saw Animal twice, twice back to back in 2 days. So yeah, Animal ka jo craze tha, the songs and everything was so phenomenal. So yeah, I remember that experience. And Dhurandhar's trailer, when the teaser was released 2 to 3 months back, I was like कि यार ये क्या शानदार चीज कर रहे हैं. The use of the song Jogi, which was a classical 1995 song redubbed in early 2000s, and renamed to Jogi. एंड और अब उसके बाद इतने सालों बाद उस सॉन्ग को धुरंधर में यूज किया गया विद हनुमान काइंड एंड द फीमेल सिंगर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त. सैंडलस करके नाम है उनका. बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस सॉन्ग को रिमिक्स किया गया है. हनुमान काइंड्स वर्सेस आर लिटरली फायर. एंड द फर्स्ट टीजर वो पूरा उस गाने के ऊपर उन्होंने सेट किया था. एक एक बीट, द वे ही मूव्स, एवरीथिंग वाज सेट ऑन द बीट्स ऑफ दैट सॉन्ग. एंड देन उस सॉन्ग को सोलो रिलीज किया गया था लास्ट मंथ. एंड इट वाज ऑब्वियसली अ चार्ट बस्टर. हम लोग ने घिसा दिए सुन सुन के वो गाने को. एंड नाउ द ट्रेलर, द 4.5 minute trailer dropped last week. And yeah, I wanted to make this video earlier, but due to some issues I wasn't able to make that video. But it was on my mind कि ये video तो बनाना है. And Dhurandhar is a most highly anticipated movies of both for both of us. We both will watch most probably. But Dhurandhar is a really anticipated movie. But इस ट्रेलर को देखने के बाद तो भाई देखना है. बस यही दिमाग में आ रहा है, देखना है. And as you know, Dhurandhar movie starring Ranveer Singh, Sanjay Dutt, Akshay Khanna, Arjun Rampal. After a long time watching Arjun Rampal in such a good role. बाकी अक्षय खन्ना तो ऑलवेज एज यूजुअल ही इज अ फेनोमिनल परफॉर्मर. संजय दत्त ने भी जो भी रोल्स किए हैं, अच्छे किए हैं. विलन में रिसेंटली बहुत देखा संजय दत्त को, बट ये कुछ बेटर लग रहा है. एंड बट रणवीर सिंह, आई थिंक ये उसकी कम बैक मूवी होगी, रणवीर सिंह की. एंड द वे ही हिज लुक इज, द वे ही इज वॉकिंग, द माचोनेस, he has a aura around himself that I've never seen around Ranveer Singh. रणबीर कपूर में थी वो एनिमल में. एंड नाउ आई एम सेइंग इट अराउंड हिम. और उसके डायलॉग भी मिनिमल हैं. तुम्हारे पटाखे हो गए हो तो अब मैं कुछ करूं. एंड बट let me talk about the trailer first. The intro scene, Arjun Rampal, who's playing a ISI commando, which is inspired by the movie is said to be inspired by true events. um, it is a dramatized version of the true events obviously, but the way it shows it's so gritty. मतलब ऐसा सीन मैंने आज तक हिंदी मूवीज में नहीं देखा है. और ऐसा सीन आज तक मैंने किसी हिंदी मूवी ट्रेलर में नहीं देखा है. द मोस्ट वायलेंट मूवी जो मैंने देखी हिंदी में वो थी किल. एंड ये जो ट्रेलर में दिखा दिया, किल से भी 3 गुना आगे चले गए हैं. अगर मैं यहाँ डिस्क्राइब करने बैठूंगा तो शायद ये वीडियो ब्लॉग काइंड ऑफ हो जाए. बट you have to watch that trailer to know what I'm talking about. It's super violent, super gory. And the same way Akshay Khanna's character, अक्षय खन्ना का कैरेक्टर का तो कसाई कसाई नुमा मौत होती है. द वे ही सेज दोज लाइंस, ओ माय गॉड, चिल्स. एंड देन द मतलब हर कैरेक्टर को एक वो दिया गया है कि एंजल ऑफ डेथ कहा गया है. और किसी को, बट द बेस्ट पार्ट इज रणवीर सिंह, wrath of god.
जब रणवीर सिंह का कैरेक्टर आता है उसमें लिखा था रैथ ऑफ गॉड। आई लव दैट। ऑल्सो संजय दत्त को जिन कहा गया है। वो डायलॉग मैं बोल नहीं सकता यार, ये वीडियो में वैसे भी हम लोग को पैसा तो मिलता ही नहीं यूट्यूब से, 50-60 व्यूज आते हैं, बट द वे oh, I love that so much, so good, मतलब the way they describe, also the song जो play होता है end में, I want to listen to that song too. It sounds really powerful, I would say. और the tone, best thing about this is the tone. आधार जिनकी ये मूवी है, उन्होंने पहले उरी बनाई थी और उसके बाद कई मूवीज प्रोड्यूस की उन्होंने, लेकिन उनकी डायरेक्टेड उरी के बाद अब मूवी 7 से 8 साल बाद ये मूवी आई है, एंड आई थिंक ही हैज आउटडन हिमसेल्फ इन दिस मूवी। द ट्रेलर लुक्स सो डैम गुड एंड लिटरली देयर आर पैरेलल्स। एनिमल के ट्रेलर अगर आप देखेंगे तो उसमें पहला सीन डायलॉग वो पापा वाला सीन है, सेम वे इसमें भी अर्जुन रामपाल का जो सीन है वो भी एक ऑलमोस्ट 30 से 40 सेकंड का सिर्फ डायलॉग हैवी वन टेक सीन है, और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। इन द सेम वे इसमें भी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑब्वियसली टोन इज डिफरेंट, द लुक ऑफ कैरेक्टर्स आर डिफरेंट, और ऑल्सो ये सब विलन है। और एनिमल में हर कोई विलन नहीं था ऑब्वियसली, बट या द वे देर आर पैरेलल्स, वी कैन ड्रॉ इजली ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन दिस ट्रेलर एंड एनिमल्स ट्रेलर। ऑल्सो एनिमल में पापा पापा था, इसमें देश के लिए रणवीर सिंह का कैरेक्टर मोस्ट प्रोबेबली जो इंडियन एजेंट रहेगा वो करेगा। देर आर थिंग्स you can draw parallel to also the gore factor की वायलेंस जो तरीके से दिखाया गया है। ऑब्वियसली इसमें एनिमल जिसके आगे फैमिली फिल्म लगेगी, द वे दे आर शोइंग वायलेंस हेयर, सो इट्स फिनोमिनल द वे दे आर दे हैव पिक्चराइज्ड। ऑल्सो थाईलैंड में, हाँ थाईलैंड में ही आई थिंक उन्होंने पाकिस्तान का सेट क्रिएट किया था, लियारी करके एक जगह है जो बहुत ही वायलेंट जगह मानी जाती है जहाँ गैंग वॉर्स होते रहते हैं, उसका सेट क्रिएट किया था थाईलैंड में पूरा। और लिटरली मोस्टली सारे शॉट्स रियल लोकेशंस पे शॉट किए गए हैं, सीजीआई का यूज बहुत कम दिख रहा है, असली में ब्लास्ट हो रहे हैं, पपेट्स का यूज किया जा रहा है, पॉस्थेटिक्स का यूज किया जा रहा है गोर दिखाने के लिए, एंड आई लव दैट। क्योंकि आजकल की मोस्टली मूवीज पूरी की पूरी ग्रीन स्क्रीन पे शूट हो जाती हैं। आप जवान देखो, आप पठान देखो, आप कोई मूवी देख लो, बैकग्राउंड नकली, पूरे नकली। इसमें एक एक बैकग्राउंड रियल लग रहा है, तो वो ग्रिटीनेस, वो टेंजेबिलिटी फील हो रही है कि यू कैन होल्ड दीज थिंग्स इन योर हैंड। जैसे एनिमल में था, हर शॉट रियल लोकेशन पे शॉट हुआ था, रेयरली कोई शॉट होगा जो ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया गया होगा। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस, कि आदित्य दार हैज गॉन ऑल आउट। ऑल्सो जो न्यूज़ आई थी कि तिब्बत में इनका 120 का क्रू, जब ये लोग तिब्बत में लद्दाख में शूटिंग कर रहे थे, तो 120 के पूरे क्रू का फूड पॉइजनिंग हो गई थी। दे हैव गॉन ऑल गन्स ब्लेजिंग फॉर दिस मूवी, और 7 से 8 घंटे का इन्होंने फुटेज शूट किया है, और जो इतना पुख्ता है, इतना बेहतरीन है इनके हिसाब से, कि ये उसे काटना नहीं चाह रहे हैं। पहले प्लान ये था कि 3.5 घंटे की फिल्म काट देंगे उस 7 से 8 घंटे की फुटेज से, बट अब ये कह रहे हैं कि एक एक शॉट इतना इंपॉर्टेंट, इतना वेल शॉट है कि हम इसे 2 पार्ट में रिलीज करेंगे। जो ये न्यूज़ आई है अभी तक, जियो की तरफ से या आदित्य धार की तरफ से या रणवीर सिंह की तरफ से कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ आ गई है कि इस मूवी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला पार्ट तो 5 तारीख को रिलीज हो रहा है, 2 हफ्ते बाद, और नेक्स्ट पार्ट मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई तक रिलीज होगा नेक्स्ट ईयर। तो ये न्यूज़ है एक। एंड अगर जैसा ट्रेलर है, why not show us the world, make us fall in love with the world? Why not just imagine एनिमल का अगला पार्ट 6 महीने बाद आया तो that would have made bonkers money। और अगर जैसा ये ट्रेलर है उसकी 60% भी अच्छी हो गई ये फिल्म, ये मूवी बहुत पैसा पीटेगी थिएटर्स में, आई थिंक। मतलब होता है ऑरा टर्म, मैं नहीं यूज करना चाह रहा हूँ ज्यादा, बट द मूवी हैज एन ऑरा टू हिमसेल्फ, टू इटसेल्फ, and the way it's shot, the music, everything is so phenomenally done। Let's see कि क्या होता है। ट्रेलर तो बहुत शानदार है। कई बार ऐसा होता है बेहतरीन ट्रेलर होता है और एकदम ही 2 कौड़ी की फिल्म होती है, और कई बार होता है 2 कौड़ी का ट्रेलर होता है और बेहतरीन मूवी होती है। तो विल सी कि कैसा रहेगा, बट आई एम तो एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी, एंड आई थिंक if you're watching this, you are also excited to watch this movie. So yeah, we'll watch it and try to do a review of it as well. Until then, see you guys again in a new video. Like, share, subscribe, comment, tell us what do you like in Dhurandhar, which character is your favorite. Mine is Akshay Khanna's
ऑब्वियसली अक्षय खन्ना लुक्स मेनेसिंग एज हेल। ऑब्वियसली अर्जुन रामपाल थोड़ा ज़्यादा गोरी दिखाया था, बट द कन्विक्शन अक्षय खन्ना हैज़, ऑल्सो द कैरेक्टर जो उसका दिखाया है, डकैत समथिंग नाम दिखाया है, वो कैरेक्टर असली बंदे से इंस्पायर्ड है, और उसकी फोटो, अक्षय खन्ना की फोटो अगर साइड बाय साइड रखोगे तो काफी मिलते जुलते हैं, द बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर। तो इट्स सो गुड, इट्स सो गुड। अक्षय खन्ना इज लुकिंग menacing, yet there is a comedic, there is a touch of element to him. You laugh while looking at him कि यार ये आदमी हंसा भी देगा तुम्हें कोई सिली सी बात करके, और फिर लोहे का बाट उठा के तुम्हारा सिर फोड़ देगा चौराहे पर। तो आई लव दैट अबाउट दैट एक्शन। ऑल्सो रणवीर सिंह का के बारे में ज्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि उसका डायलॉग एक ही है, बट द wrath of God is coming and can't wait. So like, share, subscribe, wait for our next video. Until then, sayonara and hasta la vista.